Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? Now, in this particular video, we are going to start the second chapter of our supplementary reader. The name of the book is An Alien Hand. And what are we doing right now? We are doing 7th grade NCERT syllabus. So, this chapter is again very amazing. What's the name of the chapter? Bringing up curry. And who is curry? Curry is an elephant. Oh yes. How many of you still wonder, like जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं and suppose there is a huge elephant walking on the road, the mightness, like इतना mighty होता है वो, इतना बड़ा होता है, it's like you feel amazing. I still stop and I look at that elephant, the way it walks, and उसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है. Isn't it fantastic? So, do you want to learn something about an elephant? Just like we learned about a tiny teacher in our last chapter. Who was the tiny teacher? An ant, right? So, in this chapter, we are going to learn a small story about an elephant. And here we are going to see how it grew up and also some interesting facts about our little curry. Okay, so let's begin our chapter. Now, before we read, Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. So, here this particular story has been written by Dhan Gopal Mukherjee. Okay, Dhan Gopal Mukherjee, and this is a big chapter. I mean, it's a novel like Curry the Elephant. उसमें से एक छोटा सा excerpt लिया हुआ है, that which is what we are reading right now. So, Curry जो है वो एक छोटा सा elephant है, 5-month-old, and he is growing up उसके कीपर के साथ, और उसका कीपर, the one who takes care of him, कौन है वो है हमारी 9-year-old friend. Okay, very good. So 9-year-old friend means जो हमारे जो सर हैं, जो उनका ख्याल रख रहे हैं, वो सिर्फ 9 साल के एक छोटे बच्चे हैं, मतलब आप लोगों से भी बहुत छोटे हैं. Curry doesn't eat much, just about 16 kgs of delicious twigs a day. So वो ज़्यादा नहीं खाता, वो सिर्फ 16 kgs of delicious twigs. Twigs क्या होते हैं? Twig का मतलब होता है a slender shoot of a tree or other plant. तो जो प्लांट्स होती है उनकी जो नाजुक सी जो ब्रांचेस होती है, शूट्स मतलब जो एकदम पतली पतली सी जो ब्रांचेस होती हैं, ओके, उनको खाता है वो, और ज़्यादा नहीं खाता, only 16 kgs per day. Playful and sensitive, Curry saves a boy from drowning. Okay, so playful और जो हमारा मस्ती भरा जो हमारा यहाँ पे हाथी है, जो Curry है, उसने एक बार एक बच्चे को ड्राउन होने से बचाया था, मतलब डूबने से बचाया था. What is the actual meaning of drowning? To die under water of suffocation. So, पानी के अंदर सफोकेशन के कारण जो आपकी डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं ड्राउनिंग. तो उसने एक बच्चे को डूबने से भी बचाया था, which means he is very sensitive. It is very sensitive and it is very intelligent as well. So, let's learn about our hero of the story, Curry. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Now here the entire story has been narrated by the keeper of this elephant Curry. मतलब जो उसका केयरटेकर है उसके थ्रू ये पूरी स्टोरी नरेट की गई है. वो क्या बोल रहा है? Curry मुझे तब मिला था जब वो अराउंड 5 मंथ्स का था, एंड ये कितने ईयर्स के था? ये 9 ईयर्स के थे. I was 9 years old and I could reach his beck if I stood on tiptoe. मतलब मैं 9 ईयर्स का था और Curry ओनली 5 मंथ्स का था, लेकिन मैं उसके बैक तक पहुंच पाता था अगर मैं टिपटो करता था. मतलब जो हम अपने टिप्स पे, जो पैरों पे, जो तलवों पे खड़े हो जाते हैं ना, एकदम ऊपर करके, उसको बोलते हैं टिपटो. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और उसकी वो जो हाइट थी वो कितने तक थी? Almost for the next 2 years उसकी हाइट उतनी ही थी. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. अब 9 years के बाद ये भी बड़े हो रहे थे और हमारा जो Curry था वो भी बड़ा हो रहा था, तो उन्होंने बोला हम दोनों साथ में बड़े हो रहे थे, तो एग्जैक्टली मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उसकी हाइट कितनी बड़ी है. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps
so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. Now we are talking about an elephant. वो elephant किसी से टकराएगा तो क्या होगा, धड़ाम से चीज गिर जाएगी. So अब ये कहाँ रहता था करी? He lived in a pavilion. Pavilion क्या होता है? A light यूजुअली ओपन बिल्डिंग यूज फॉर शेल्टर. सो जो ओपन बिल्डिंग होती है जहाँ पे आप मतलब ऐसा ऊपर जो है एक थैच्ड रूफ थी. थैच्ड का मतलब क्या होता है? अ मटेरियल एज स्ट्रॉ, रशेस, leaves or the like suit to cover roofs, grain stacks etc. So it's just like a room, और उस रूम की जो छत होती है उसमें पूरी जैसे वो स्ट्रॉ से या लीव से वो पूरी कवर्ड रहती है ताकि डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा नहीं आए. So and which rested on thick tree stumps. ट्री स्टम्प्स की बात यहाँ पे क्या की है? आफ्टर अ ट्री हैज बीन कट. ट्री स्टम्प क्या होता है? जैसे कि ये कोई मान लो ये ट्री है, ठीक है, जब आप इस ट्री को काट देते हो तो ये पूरा कट जाता है, तो जो ये नीचे का जो ये पार्ट बचा रहता है, जो जमीन, जैसे ये जमीन है उसमें सिर्फ इतना सा जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम ट्री स्टम्प कहते हैं. उसकी रूट्स अभी भी जमीन में है, ऊपर का लॉग आप पूरा काट चुके हो, तो यहाँ से पूरी रोप बांध दी जाती है इसमें. सो दैट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं. वो उसको ट्री स्टम्प से क्यों बांधा? ताकि वो अगर इधर उधर कहीं पे जाए भी तो सब कुछ ऊपर से नीचे ना गिर जाए. So that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved out. अब वो जो पूरी छत है वो इससे बंधी हुई थी ताकि जैसे कभी करी इधर टकराए या उधर टकराए तो ऊपर से सब कुछ नीचे ना गिर जाए. One of the first things Curry did was to save the life of a boy. अब करी ने जो पहली चीज़ थी जो करी थी, जो सबसे अमेजिंग चीज़ वो थी, उसने एक लड़के की जान बचाई थी. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, मतलब compared to other elephants वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, but उसको nevertheless का मतलब क्या होता है? in spite of, वो ज़्यादा नहीं खाता था, in spite of that he needed at least 40 pounds of twigs. उसको इतना भूसा चाहिए होता था, किस लिए? खाने के लिए, और वो उसके साथ खेलता भी था. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. So हर मॉर्निंग को जो हमारे जो केयर टेकर साहब हैं वो उनको लेके जाते थे करी को for his shower. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. So वो वहाँ जाके जो पूरा सैंड का जो बैंक था, मतलब जो पूरा वहाँ पे सैंड थी, वो वहाँ पे जाके मस्त लेट जाते थे, और जो हमारे केयर टेकर थे, जो अच्छी वाली सैंड होती है जो रिवर के बगल में है, रिवर के बगल में जो अच्छी वाली मिट्टी होती है उससे पूरी जो सैंड होती है उससे वो उसको रगड़ रगड़ के 1 घंटे तक धोते थे. मतलब हमारे जो करी जी थे उनकी 1 घंटे अमेजिंग वाली मसाज होती थी. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑब्वियसली इट्स लाइक वो एक बाथ टब में चले जाते थे. इसके बाद तो मस्त मसाज हुई, अच्छे से किसी ने रगड़ा, अब गए और पानी में जाके मस्त बहुत टाइम तक उन्होंने वहाँ टाइम स्पेंड किया. On coming out, his skin would be shining like ebony. मतलब अब इतने अच्छे से रगड़ रगड़ के किसी नहलाया तो जब बाहर आएंगे तो चमकेंगे ही. और कैसे चमकते थे? एबनी जैसे. एबनी क्या होता है? वेरी डार्क ब्राउन टिम्बर फ्रॉम अ मेनली ट्रॉपिकल ट्री. तो जैसे ट्री जो होता है ना उसका कुछ की लकड़ियाँ एकदम बहुत डार्क कलर की होती है, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की, तो वो वैसे चमकता था. And he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. और जैसे ही मैं उसके ऊपर पानी स्प्लैश करता था, it would squeal with pleasure. Squeal का मतलब एक ऊंची सी आवाज निकालते हैं, where he is happy. So वो अपनी happiness express करता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. Okay, किसी ने कभी देखा है जो एलिफेंट के ऊपर जो बंदा बैठता है, जब वो उसको कैसे चलाता है, उसको कैसे पता होता है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? वो उसके ईयर्स को मोड़ता है, मतलब वो उसके ईयर्स के थ्रू उसको डायरेक्शन देता है. सो एलिफेंट को डायरेक्शन देने का सबसे इजी और सही तरीका होता है उसके ईयर्स को मूव करना. And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और वो क्या करता था? वो उसको जब भी वो लोग फॉरेस्ट जाते थे तो फॉरेस्ट में जाने के टाइम पे वो उसको फॉरेस्ट के बाहर एज पे छोड़ देता था,
और खुद अंदर जाके जो एकदम अमेजिंग ल्यूशियस मतलब बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट और स्लेंडर ट्विग्स जो होते थे, छोटी छोटी ब्रांचेस होते थे उसके खाने के लिए, वो उसको कलेक्ट करता था. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. अब ये क्या होता है? हैचेट मीन्स एक तरीके की नाइफ होती है जिससे आप ट्विग्स को काटते हो, और ये नाइफ जो होती है ये बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए. It takes half an hour to sharpen the hatchet before if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. अब इसमें पूरे आधे घंटे लगते हैं उसको. हैचेट जो है, तो हैचेट किस तरीके का होता है? वो इस तरीके का दिखता है, आपने देखा होगा, ये इस तरीके की नाइफ होती है वो. सो उसको हाफ एन आवर शार्प करना पड़ता है. क्यों शार्प करना पड़ता है? क्योंकि अगर आपके जो ट्विग्स हैं वो थोड़े भी सही तरीके से नहीं कटे हैं, अगर म्यूटिलेटेड हैं वो, मतलब जैसे आड़े टेढ़े कट गए या मान लो सही तरीके से नहीं कटे, तो एलिफेंट वुड नॉट इवन टच इट. ओके, इट was not an easy job to get twigs and saplings for curry. अब ये करी के लिए जो ये ट्विग्स लेना या सैपलिंग्स मतलब जो नए नए एकदम नाजुक नाजुक जो पेड़ होते हैं वो निकालना बिल्कुल आसान काम नहीं था. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे हर तरीके का जो ट्री था उसे क्लाइंब करना पड़ा था to get the most delicate and tender twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some. One spring day in March, when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. Now, उसको क्या पसंद था करी को? करी was very fond of. Fond of का मतलब क्या होता है? That he used to love or like a lot. यंग ब्रांचेस ऑफ द बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री होता है उसकी जो एकदम नाजुक नाजुक जो ब्रांचेस होती है उसको वो बहुत पसंद थी. विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, मतलब वो कैसे ग्रो होती हैं? वो जो एकदम जो उसकी होती है ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक साथ हैं. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, तो मार्च का एक बहुत अच्छा सा स्प्रिंग डे था और ही वॉज गैदरिंग सम ऑफ द ब्रांचेस. तो तभी उसने क्या सुना? करी उसको बुला रहा था. As he was still very young, अब करी तो अभी बहुत छोटा था, right? The call was more like that of a baby than an elephant. So करी जो था अभी almost like 2.5 years का था, तो वो जिस तरीके से बुला रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसे कोई छोटा बेबी ही बुला रहा है. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. मुझे लगा हो सकता है कोई उसे हर्ट तो नहीं कर रहा होगा, तो वो जो हाँ ट्री के ऊपर चढ़ा था टू कट द बैनियन ट्री के जो लिटिल लिटिल ट्विग्स थे वो तुरंत नीचे आया एंड ही रैन टू द एलिफेंट, ये देखने के लिए इफ ही इज ओके और नो. एंड ही रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम. तो जहाँ उसने फॉरेस्ट के एज पे उसको छोड़ा था वहाँ जाके उसने देखा, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहाँ पे था ही नहीं. I looked all over, but I could not find him. अब मैंने हर जगह देख लिया लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. तो उसके बाद जहाँ पानी था मैं वहाँ पे गया देखने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे जो पानी की जो एकदम सरफेस मतलब जो सतह होती है उसमें कुछ ब्लैक कलर का हिल रहा है वहाँ पे. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और उस पानी में उसने देखा कि जो ये बेबी एलिफेंट था वो जो ब्लैक ब्लैक चीज़ मूव हो रही थी, जब वो ऊपर आई तो उसने देखा ये तो मेरे एलिफेंट की ट्रंक है. आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे क्या लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब वो पानी में चला भी जाता तो वो कुछ नहीं कर सकता था. क्यों? बिकॉज एलिफेंट वॉज 400 पाउंड्स और वो उससे बहुत ज़्यादा लंबा था. वो उसको बेचारे छोटा ही था ना, ही वॉज ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, तो वो उसको करी को बाहर लेके कैसे आता. बट I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. So फिर मैंने देखा कि वो डूब नहीं रहा था, उसका बैक ऊपर आ गया था
एंड द मोमेंट करी ने उसको देखा, सो ही स्टार्टेड ट्रम्पेटिंग, मतलब वो जोर जोर से उसको आवाज लगाने लग गया, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, एज इफ वो शोर के पास आना चाह रहा है. देन still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, अब वो क्या आया, वो शोर के पास आया और उसने इसको लिया, जो करी का जो केयर टेकर है उसको लिया, उसको पानी के अंदर डाल दिया. तो जैसे ही उसने उसको पानी के अंदर डाला, I fell into the stream. I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो जैसे ही वो पानी के अंदर गया, उसने पानी के अंदर उसको डाल दिया, तब उसने देखा अरे नीचे कोई छोटा बच्चा है, एक बॉय है जो पानी में नीचे पड़ा हुआ है. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो एकदम जो रिवर था उसके एकदम नीचे तक नहीं पहुंचा था, वो जो स्ट्रीम था उसके एकदम नीचे तक नहीं पहुंचा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफ्लोट था. अफ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग इन वाटर, नॉट सिंकिंग, मतलब वो पानी में तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing. तो जैसे उसने देखा, अब वो पानी के अंदर तो रह नहीं सकता था, मरमेड तो था नहीं, वो तो एकदम से बाहर आया टू ब्रीथ. उसके बाद उसने देखा करी वहां पे, ही वॉज स्टैंडिंग, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तो उसका जो फीट था उसने एकदम सही तरीके से प्लांट करके रखे थे. प्लांट का मतलब क्या होता है, सेट और प्लेस इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब उसने प्रॉपरली उसको जमा के रखे थे ताकि वो कहीं पे भी डिसबैलेंस नहीं हो. और उसने जो ट्रंक थी उसको ऐसे रखा हुआ था ताकि एज इफ इट वाज लाइक अ हैंड, जो कि उसके केयर टेकर को हेल्प करेगा निकालने के लिए. नाउ I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. अब मैं वापस उसने डुबकी लगाई और वो जो बच्चा था, वो जो था, उसको वो ऊपर सरफेस तक लेके आ गया. Not being a good swimmer, I could not swim ashore. अब वो कोई बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, तो क्या हुआ, वो उसको लेके शोर तक मतलब स्विम नहीं कर पा रहा था. एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. और जो स्लो करंट था उसकी वजह से क्या हो रहा था, स्लो करंट का मतलब क्या होता है, जब आपका जो पानी जो है, पानी की जो स्पीड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड वो उसके साथ मूव नहीं कर पा रहा था, तो वो उसके साथ आगे स्विम नहीं कर पा रहा था. Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous. अब करी ने क्या देखा कि ये लोग जो हैं शोर की तरफ नहीं जा रहे, ये लोग उल्टे डायरेक्शन में बहते जा रहे हैं. तो करी यूजुअली कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा पॉन्डरस था. पॉन्डरस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं. स्लो एंड क्लमजी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट, जो बहुत मोटे होते हैं, वो जो कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं. तो हमारा जो करी था वो भी एकदम क्लमजी था, लेजी जैसा था. लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो दोनों लोग जो थे वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब शोर अगर इधर है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, एंड उसका जो केयर टेकर है वो स्विम करके उसको शोर तक नहीं लेके जा पा रहा है, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. तो उसने क्या किया, वो तुरंत पानी में आया. darted का मतलब move और run somewhere suddenly और rapidly. वो वापस फुल स्पीड में पानी के अंदर आया, like a hawk मतलब एक चील की तरह बहुत ही फुल स्पीड में वो अंदर आया, and came halfway into the water. तो पूरा पानी की दर पे हाफ वे तक आ गया. वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन. तो जैसे पानी के अंदर आके अपन अपना किसी को हाथ देते हैं ना बचाने के लिए, वैसे ही उसने अपनी ट्रंक दी, अपनी जो सूंड होती है उसको उसने स्ट्रेच किया. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. उसने कोशिश किया, मतलब पानी में था ना वो, तो उसने कोशिश किया उसकी ट्रंक को होल्ड करने के लिए, लेकिन वो उसका हाथ स्लिप हो गया. I found myself going under the water again. अब ये डूबने लग गया था, ये वापस पानी के अंदर जाने लग गया था. But this time I found that the water was not very deep. लेकिन इसमें क्या हुआ, वो वापस पानी के अंदर जाने लग गया था, लेकिन उसने क्या नोटिस किया कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. तो उसने क्या किया, अपने फीट को नीचे किया, मतलब वो नीचे तक आया. उसने देखा कि गहरा नहीं है वो ज़्यादा. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, मतलब वो एकदम बॉटम ऑफ द रिवर तक आया. उसने अपने पैरों को नीचे तक टच करने दिया एंड डबल्ड माई फीट.
अपने आप को स्टेबलाइज किया, मतलब कि एकदम जैसे अगर मुझे जंप करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा जंप नहीं करूँगी। अगर मुझे बहुत हाई जंप करना है तो फर्स्ट आई गो डाउन अपने पैरों को, उसके बाद मैं अपने आप को पूरा पुश करूँगी। एंड दिस इज व्हाट ही डिड, डबल्ड माई फीट, मतलब उसने अपने आप को स्टेबलाइज किया अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड। फिर मैंने रिवर बेड से जो मतलब पूरी जो जमीन थी उस पर किक किया एंड देन आई वॉज शॉट अपवर्ड्स एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और एक एरो की तरह मैं बाहर आया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड। ओके, अब क्या होता है, पानी के अंदर चीज का वेट समझ में नहीं आता। ओके, किसी भी पानी के अंदर चीजों का वेट समझ में नहीं आता, हल्का लगने लग जाता है वो। तो उसके हाथ में वो बॉय था, लेकिन उसके बाद भी उसको वेट समझ में आया, उसने अपने आप को इतना फोर्सफुली किक किया कि वो बाहर आ गया। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. और जैसे ही मेरी बॉडी पानी के ऊपर आई, मुझे लगा मेरे आसपास जो है लैसो, मतलब क्या होता है, a rope with the noose at one end, especially used for catching cattle. So इस तरीके की एक रोप होती है, ठीक है, इधर पे, मतलब जो है आप जब किसी को पकड़ने के लिए ऐसे घुमा के फेंकते हो ना ताकि आप उसे कैच कर लो, उसे हम लैसो कहते हैं। दिस फ्राइटेंड मी, मुझे लगा कोई स्नाप वाप तो नहीं है, बाप रे भाई, डर लग गया उसको। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। तो अब वो इतना उसको अजीब सा लगा उसके गले में, तो उसको लगा हो सकता है कोई वाटर एनिमल है और वो उसको स्वेलो करने वाला है, मतलब खाने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, लेकिन तभी मुझे करी की आवाज आई एंड आई न्यू इट वॉज स्ट्रंग बिफोर माई नेक, अराउंड माई नेक। मतलब ये जो उसको अजीब सी चीज लग रही थी, ये कुछ और नहीं था, ये करी की ट्रंक थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने इस तरीके से पकड़ के, जो करी था उसने उसकी सूंड से इस तरीके से पकड़ के उन दोनों को ही पुल्ड आउट ऑन द शोर, पानी के बाहर लेके आ गया। नाउ so this was the first thing that Kari did. He saved the life of a boy, which shows that Kari was very brave and he was very sensitive. Now there are other things that we are going to read about Kari. Kari becomes fond of ripe bananas. Okay, so Kari is growing up और अब उसको अचानक से क्या अच्छे लगने लग गए हैं, उसे बनानास अच्छे लग गए हैं। He believes in self-help much to the discomfort of his friend. उसने ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, मतलब क्या होता है, वो खुद ही ले लेता था सारे बनानास एंड मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और उसका जो केयर टेकर था इसके कारण बहुत परेशान हुआ। कैसे परेशान हुआ वो अभी हम देखने वाले हैं। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। सो लेकिन जब बाद में कुछ ऐसा होता है, जब करी को शायद डांट पड़ती है या उसकी चोरी पकड़ी जाती है, तब वो बहुत डिग्निटी के साथ, मतलब अपने पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है वो अपनी चीज़ गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो होता क्या है आखिर ये बनानास का जो है छोटा सा स्टोरी है क्या, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं। Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी जो था एक छोटे बेबी की तरह था। अगर हम बेबी को नहीं बताएंगे सही टाइम पे कि आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो वो तो और ही ज़्यादा शैतानी करता जाएगा। उसी तरीके से करी को भी बताना पड़ता था कि बेटा ये तो तुम ठीक करो, ये अति हो रही है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो बहुत मिस्चीवियस हो जाता, मतलब बहुत नॉटी हो जाता था। फॉर इंस्टेंस, अब हम बता दें क्या हुआ था। वन डे somebody gave him some bananas to eat. अब करी को एक दिन क्या हुआ, किसी ने भी पके हुए केले जो थे वो खाने के लिए दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. अब ripe bananas तो बड़े टेस्टी लगे उसको, तो बहुत जल्दी उसने अपना ये जो टेस्ट था ripe bananas के लिए डेवलप कर लिया and he started loving it. We used to keep large plates of fruit on a table near the window in the dining room. अब इनका जो घर था, जो इसका जो केयर टेकर था, उनका जो घर था, वहाँ पे जो डाइनिंग रूम था उसमें एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था। उस डाइनिंग टेबल में एक बहुत बड़ी प्लेट में ये पूरे फ्रूट्स रखते थे। ओके, One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. तो एक दिन क्या हुआ, वो जो बड़ा सा जो प्लेट था, फ्रूट प्लेट था जिसमें इतने सारे फ्रूट्स रखे थे, उसमें से सारे राइप बनानास गायब हो गए। एंड मम्मा पापा ने क्या किया, उन्होंने बोला ज़रूर जो है हमारे जो नौकर हैं उन्होंने खा लिया होगा। तो दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द सर्वेंट्स।
A few days later, the fruit disappeared again. थोड़े दिन बाद वापस वो ripe bananas उसमें जो रखे थे वो गायब हो गए. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. इस बार उन्होंने बोला तुमने खाए होंगे, तो उसका जो करी का जो केयर टेकर है उसके ऊपर ब्लेम चला गया. मम्मा पापा ने बोला बेटा तुमने खाए सारे के सारे, और मैंने तो खाए भी नहीं थे. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया. मुझे लगा ये मेरे मम्मा पापा मुझे बिना मतलब के डांट रहे हैं एंड मैंने तो नहीं खाए हैं, तो पक्का ये जो नौकर हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उन्हीं ने खाए होंगे, उनके कारण मुझे डांट पड़ रही है. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. Next time जब उनको वापस बनानास गायब हुए, तो क्या उसने देखा कि जहाँ करी जहाँ रहता है वहाँ पे एक बनाना बहुत ही स्मैश्ड, मतलब पिचका हुआ, एकदम स्मैश का मतलब क्या होता है वायलेंटली और बैडली ब्रोकन और शैटर्ड, तो मतलब एकदम से उसके वजह से किसी ने पैर रख दिया हो या फेंक दिया हो, उस तरीके से पड़ा हुआ था. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. तो इससे मुझे बहुत सरप्राइज हो गया कि अरे ये केला जो है ये यहाँ पे कैसे आया, बिकॉज करी तो फ्रूट्स खाता ही नहीं है. करी क्या खाता है, वो तो ट्विग्स खाता है. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. अब वो डाइनिंग टेबल पे नेक्स्ट डे बैठे हुए थे जो इनके केयर टेकर थे करी के. तो अब उसको लगा यार मैं फ्रूट खाऊं या नहीं खाऊं, मन तो कर रहा था, लेकिन मम्मा पापा की परमिशन के बिना मैं फ्रूट खाऊंगा, बाद में ये लोग मुझे फिर ब्लेम करेंगे तुमने ही अभी तक के सारे बनानास गायब किए थे. A long black thing very much like a snake suddenly came through the window. A long black thing जो बहुत स्नेक जैसी लग रही थी वो विंडो से आई and disappeared with all the bananas. तो वो विंडो से आई, बनानास लिए और उसके बाद अचानक से गायब हो गई. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. उसको लगा oh my god, snakes bananas खा रहे थे और ये snake था जिसने मेरे bananas पूरे चोरी किए थे. बट उसको लगा कितनी strange बात है, क्योंकि उसने तो कभी कोई ऐसा snake देखा ही नहीं है जो bananas चुराता है. So I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. So अब उसने एक चीज यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है sneak in का मतलब क्या होता है, किसी के घर में चोरी छुपे घुसना, कहीं पे भी चोरी छुपे घुसना ताकि किसी को पता नहीं चले. तो उसको लगा यार ये बड़ा अच्छा स्नेक है, बहुत ही बुरी बात है ये, तो मतलब पहले चुपके से अंदर आता है और बनानास लेके चला जाता है. So I crept out of the room. तो crept out मतलब दबे पाँव आना जिससे किसी को पता ना चले. So he crept out of the room and with great fear in his heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तो उसने क्या किया, उसको बहुत जोर से डर लग गया था, छोटा ही तो था वो, तो उसने दबे पाँव वो घर से बाहर निकला और वहां से भाग गया. उसको क्या लगा कि ये जो स्नेक है ना अब ये घर के अंदर आएगा और हम सबको काट लेगा, इससे अच्छा निकल जाओ घर से. As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब जैसे ही वो घर से बाहर निकला उसने क्या देखा कि करी का उसको बैक साइड दिखा. सो करी कहाँ जा रहा था, अपने जहाँ उसका पवेलियन था जहाँ वो रहता था वहाँ पे जा रहा था. तो वो इतना डरा हुआ था, उसको लगा वो करी के पास जाएगा, उसको हक करेगा, उससे बात करेगा तो वो बेटर फील करेगा. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. तो ये वापस गया दौड़ के करी के पास और जैसे वो पवेलियन में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि करी वहां मस्त बैठ के केले खा रहा है. I stood still in astonishment. मतलब मैं टोटली सरप्राइज हो गया और मैं वहां पे खड़ा होते देखता ही रह गया. The bananas were lying strewn all over him. और जितने भी bananas थे they were lying strewn मतलब untidily scattered थे, हर जगह पड़े हुए थे. He stretched out his trunk and reached for one far from where he was standing. मस्त वो एक जगह बैठा हुआ था और दूर एक जो बनाना पड़ा हुआ था उसको अपने ट्रंक से लिया और वो उसको खा रहा था, एंजॉय कर रहा था. That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. उस टाइम पे जब उसने अपनी ब्लैक
ट्रंक को लिया, दूर से एक बनाना लिया, तब उसने देखा ओके, तो वो जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर था वो कुछ और नहीं था, वो करी की ट्रंक थी, उसकी सूंड थी। और एक्चुअल चोर सर्वेंट्स नहीं है, एक्चुअल चोर कौन है? करी है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. मैंने उसके कान पकड़े और उसको लेके गया अपने पेरेंट्स के पास कि देखो जो तुम्हें लग रहा है इतने वीक से मैं चोर हूँ, मैं बनानास खा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, ये है वो चोर. Then I scolded him for elephants understand words as well as children. तो उनको फिर मैंने उसको अच्छे से डांट लगाई. स्कोल्ड किया मतलब डांट लगाई. तो जैसे बच्चों को समझ में आ जाता है ना उनको डांट तो वैसे एलिफेंट्स को भी अच्छे से समझ में आ जाता है. एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. अगर मैंने अगली बार तुमको देख लिया ना चोरी करते हुए फ्रूट्स तो तुमको अच्छे से मार पड़ेगी. whipped मतलब अच्छे से बीट करना. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसको लगा सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, सर्वेंट्स भी बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसके कारण सर्वेंट्स पे इल्ज़ाम आया था, तो सर्वेंट्स भी बहुत गुस्सा थे. और उसका प्राइड इतना ज़्यादा था कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग टेबल से एक भी फ्रूट नहीं लिया. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank him. लेकिन फ्रूट्स तो बहुत पसंद थे, तो नेक्स्ट टाइम से जब कोई खुद से आके कोई भी फ्रूट देता था, so he would squeal, मतलब वो बहुत अच्छी सी आवाज़ निकालता था, एक हाई पिच नॉइज की, as if he was saying thank you. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. So जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड भी होता है. मतलब उनकी रिस्पेक्ट जो होती है ना वो आप कम नहीं कर सकते. अगर उन्होंने कोई गलती की है तो आप डांट लो, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है और अगर आप तब उनको डांटते हो तो वो लोग क्या करते हैं, दे विल पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. इसका ये एक लाइक दिस इज एन इडियम विच सेज कि जैसा तुमने उनके साथ किया वो एग्जैक्टली वैसा तुम्हारे साथ करेंगे. टू ट्रीट अ पर्सन इन द वे दैट ही और शी हैज ट्रीटेड अदर्स. तो जैसा उन्होंने बिहेव किया एग्जैक्टली वो तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे. सो now this was the second thing that we learned about Curry. So as he was growing up, first he saved a boy, now he was a chief. Now let's read another few things so that we can go to the third part. Curry is a fast learner. अच्छा, तो अब उसकी पूरी टीचिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड हियर वी गेट टू नो कि करी बहुत जल्दी सीख जाता है सब कुछ. He masters all signals and sounds he is taught. उसको जितने भी signals और sounds सिखाए गए हैं वो सब उसने अच्छे से सीख लिए हैं. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. Curry is no exception. So एक पर्टिकुलर लेसन है जो किसी भी एलिफेंट को एटलीस्ट 5 years लगते हैं सीखने के लिए और करी बिल्कुल अलग नहीं है, उसे भी 5 years ही लगे, though he is a quick learner. So basically now we are going to talk about his entire training and teaching session. करी को सारे जो एलिफेंट्स होते हैं, क्योंकि जब एलिफेंट छोटा होता है तब तो आप ठीक है उसके ऊपर इजीली बैठ सकते हो, उसको सिखा सकते हो, बट वो जब बड़ा हो जाता है तो क्या आप उसके ऊपर लैडर लेके चढ़ोगे? उसको अगर बैठना है तो उसको बैठने के लिए बोलना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देना आना चाहिए, अगर उसको खड़े करना है तो उसे वो बोलना पड़ेगा. सो हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स एंड सिंबल्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ करी लर्नड इट. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. So एक एलिफेंट को सब कुछ सिखाना पड़ता है, कब बैठना है, कब खड़े होना है, कब जल्दी जल्दी चलना है और कब स्लोली चलना है. You teach him with these things as you teach a child. और जैसे आप एक बच्चे को सब सिखाते हो वैसे ही एलिफेंट को भी सब सिखाना पड़ता है. If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. So what is the word? अगर आप बोलते हो ये जो word है धत, अगर आप धत बोलते हो ओके और उसके ईयर को पुल करते हो, इसका मतलब ये क्या सिग्नल है? बैठ जाओ. इसका सिग्नल है sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward,
इसी तरीके से अगर आप उससे माली बोलो और उसके ट्रंक को सामने की तरफ खींचो, ये किस चीज का सिग्नल है? ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट दिस इज अ सिग्नल टू वॉक, इसका होता है सिग्नल वॉक। तो अगर आप उसको धत बोलते हो तो ये किस चीज का सिग्नल है? ये है टू सिट डाउन, और माली बोलते हो तो यू इट मीन्स दैट यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। अब वो बहुत फटाफट सीख जाता था, 3 लेसन्स, बस 3 बार उसको सिखाया एंड ही अंडरस्टूड माली का मतलब क्या होता है। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दैट। तो चलना तो उसने फटाफट सीख लिया, मतलब जैसे ही उसको चलाना होता था आप माली बोलो फटाक से, और माली बोल के उसका जो पुल कर दो उसके जो ट्रंक को, तो वो चलने लग जाता था। बट टू टीच हिम टू सिट डाउन इट टुक हिम 3 वीक्स। He was no good at sitting down, और बैठता ही नहीं था उसको कितना भी बोलो। And do you know why an elephant should be taught to sit down? अच्छा एक बात बताओ, why is it important कि आपको किसी एलिफेंट को सिखाना है कि sit down? Because he grows taller and taller than you, who would take care of him so that when he is 2 or 3 years old। अब वो क्यों उसको बैठना सिखाना जरूरी है? क्योंकि वो ऊपर जाता ही जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है, और जो केयर टेकर था जिसके सामने कभी वो छोटा था, फिर वो उसकी हाइट का आया, फिर वो बड़ा हो गया, अब वो कैसे उसको कंट्रोल करेगा? सो यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर। तो जब वो छोटा होता है, जब वो अभी क्या है, जब वो बड़ा होने लगता है, तो अब अगर उसके ऊपर जाके बैठना है तो वो एक ही तरीका होता है कि आप एक सीढ़ी लगाओ, वहां पे लैडर लगाओ, एंड देन यू हैव टू क्लाइंब इट एंड सिट ऑन द बैक। It is therefore better to teach him to sit down। इसलिए अब आप हर जगह तो सीढ़ी लेके जाओगे नहीं अपने साथ, so it is better to teach him to sit down so that you can jump and sit on his back। Dhat is the word जिससे वो बैठ जाता है, so that you can climb upon his back। For who would want to carry a ladder around all the time? कौन पूरे टाइम अपने साथ सीढ़ी लेके चलेगा? इसीलिए इट इज बेटर टू टीच हिम हाउ टू सिट डाउन, ताकि आप उसके बैक पे तुरंत बैठ सकते हो। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। अब एक एलिफेंट को अभी हमने 2 चीजें सीखी, एक माली सीखा और एक धत सीखा, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है किसी भी एलिफेंट को सिखाना, वो होता है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उसको पूरे 5 साल लग जाते हैं मास्टर कॉल को सीखने के लिए। नाउ व्हाट इज मास्टर कॉल? The master call is a strange hissing howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other। तो ये जो मास्टर कॉल होता है ना, इट इज अ मिक्स ऑफ 2 साउंड्स। जैसे स्नेक हिसिंग साउंड निकालता है, लाइक वाला साउंड, एंड जैसे डॉग है वो कैसे ग्राउल करता है, राइट, वो हाउल करता है बेसिकली, जैसे डॉग जिस तरीके से हाउल करता है, उन दोनों का साउंड का मिक्स जो साउंड होता है वो होता है मास्टर कॉल। एज इफ कि एक स्नेक और एक टाइगर जो है वो आपस में फाइट कर रहे हो, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और इस तरीके की जो ये आवाज होती है ये आपको उसके कान में करनी पड़ेगी। जो एलिफेंट है उसके कान में ये आवाज करनी पड़ेगी। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? अब जैसे ही तुम्हें, मान लो तुमने किसी एलिफेंट के कान में मास्टर कॉल कर दिया, तो इसके बाद वो एलिफेंट क्या करता है? लेट्स सी वो एलिफेंट क्या करता है। Suppose you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above. You dare not stay very long anywhere। Suppose आप जंगल में घूम गए, आप अपने एलिफेंट के साथ गए, अब आप जंगल में घूम गए, everything is dark, ऊपर स्टार्स के अलावा कुछ नहीं चमक रहा है, and can you stay in the night like and there at the jungle throughout the night? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, it's not safe। So the only thing to do then is to give the master call and at once, उस वक्त आप master call देते हो और उस वक्त elephant क्या करता है? Pulls down the tree in front of him with his trunk। जैसे आप उसे master call देते हो तो उसके just सामने जो भी बड़ा सा भी ट्री है वो उसको अपनी ट्रंक से उखाड़ के नीचे फेंक देता है। This frightens all the animals away। तो इससे क्या होता है, मान लो अगर आसपास कोई भी एनिमल है, कोई भी वाइल्ड एनिमल है जो आपको हर्ट कर सकता है, वो डर जाता है। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch। तो जैसे वो
पेड़ के गिरने की आवाज़ आती है तो जो मंकीज होते हैं वो भी जो होते हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भाग के वहाँ से वो एरिया खाली कर देते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप उनको मूनलाइट में देख सकते हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप देख सकते हो कि जो मेल डियर होते हैं जिन्हें हम स्टैग कहते हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, बिकॉज एलिफेंट से गुस्से से सबको डर लगता है, और अगर एलिफेंट ने कोई ट्री उठा के पूरा फटक दिया इसका मतलब उसका दिमाग खराब है, तो सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। सो जब ये एलिफेंट को गुस्सा आता है तो वो जो पटक देता है तो उससे आपको वो जो टाइगर होता है या लायन होता है उसका भी ग्राउल आपको सुनाई देता है। इवन ही इज फ्राइटेंड, क्योंकि जब एक एलिफेंट को गुस्सा आता है तो शेर को भी डर लग जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट। उसके बाद ये मास्टर कॉल का मतलब पहले अपने आगे जितने ट्रीज हैं उनको निकालना स्टार्ट कर दो, और वो एक ट्री उखाड़ता है दूसरा ट्री उखाड़ता है, एंड सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। तो जहाँ आप जंगल में फंस गए थे, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो तुरंत वो एक एक ट्री हटाता जाएगा एंड यू विल रियलाइज कि वहाँ से लेके आपके घर तक उसने प्रॉपर रास्ता बना दिया। एंड नाउ यू कैन एक्चुअली, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर रास्ता आपके घर के एकदम सामने तक हो जाएगा, इसका मतलब ये है दैट ही हैज़ given you a way to move out of the jungle, and also no wild animal is going to attack. So that is what is a master call. So guys, what all things did we learn in this story? So we learned about Kari, a 5-year-old एलिफेंट बेबी जो कि हमारे केयर टेकर के साथ बड़ा होता है। ही इज़ वेरी ब्रेव, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ ऑल्सो मिस्चीवियस, ही हेल्प्ड अ boy from drowning. Then he stole a lot of ripe bananas, but then he decided not to do anything like that, and he also learned a lot of symbols and techniques and the master call. And though it took him 5 years, but yes, he learned it all. So in this chapter, what all facts did we learn? So apart from the story about Kari, we also learned a lot about elephants, right? So that's why I told you that all these chapters, they are full of knowledge, they are full of fun and are very entertaining. So now it's time to do the NCERT solutions for this chapter and to go and look through a quick summary that we are going to do in our next video. So tab tak ke liye stay tuned, stay connected, keep smiling and keep watching. Bye bye. Thank you.